Hi, welcome to Full Stack Winter Training Program. Today is our day 7 and now we are going to start our journey with CSS3. We will be covering CSS in next 5 days. So I have shared you all the plans of daily basis like daily routines which we are going to follow or like what are the topics which we are going to cover, and I have also shared you notes which you can take reference for detailed instructions or for more practice or for revision purpose you can use that. So all these things are provided in your classroom, so go through that. Let's quickly start with the introduction. So we are going to cover getting started with CSS3, then we will covering up syntax, how we write syntax for CSS and how it works. Then inclusion means how we connect our CSS files or how we can use CSS with HTML. So this one will cover all the inclusion part. Then we will be covering up measurement units, like how we capture the measurements and what are the parameters which we can use for styling purposes. Then there is colors, means how you are going to define colors in CSS, and at last we are going to learn how to add background or manipulate backgrounds, or you can say adds backgrounds using CSS. So these are the things which we are going to cover up. On daily basis we will be covering up 6 topics each day. There are total 34 topics, I guess. So first 3 days will be 666, then 7 7. Okay, so 14 plus 18, and these are the total like 31 or 32 sections are there, so we are going to cover in this manner. All right, so let's jump to the first thing, that is getting started with CSS3. So what actually CSS is, then you can say it like it is a simple design language, and HTML was a simple markup language for designing up the structure for the web, and this is a simple design language which actually process like for the designing section, and it will make your website looks presentable. Means if you visit any popular restaurant or like high quality restaurants, then they like properly arrange their foods, or they properly like display their food for like attracting customers. In similar manner, if your website is not attractive, no one is going to coming up to your sites. So for this purpose we are going to like use, so for this purpose like we are going to use CSS so that like our website looks attractive. ठीक है, तो कहानी सिंपल सा ये है ना कि हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, ठीक है। अब सोचो आपने एक बिल्डिंग बनाया, उसको प्लास्टर नहीं करा एंड पेंटिंग वगैरह नहीं करा, तो क्या वो बिल्डिंग अट्रैक्टिव लगेगा? आप उसे रेंट पे डालना चाहते हो, यू हैव बिल्ट अ हाउस एंड यू वांट टू पुट इट ऑन रेंट, तो आपको क्या लगता है कि लोग अट्रैक्ट होंगे उस हाउस से, उसको रेंट पे लेना चाहेंगे? आई वुड से कि लाइक मोस्टली पीपल रिजेक्ट करेंगे, राइट? तो क्यों? अगर उसी बिल्डिंग को आप प्लास्टर कर देते हो, सही से पेंट कर देते हो, देन क्या चांसेस है, बिल्डिंग लोग पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे? सो सिंपल वे में लाइक रियल लाइफ से रिलेटेड है वेब डेवलपमेंट पूरा का पूरा, क्योंकि ओवर द वेब यू एक्चुअली सॉल्व अ प्रॉब्लम ना, वो रियल लाइफ का ही प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, राइट? तो उसी तरीके से आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। तो एचटीएमएल से समझो कि आप एक बिल्डिंग बना रहे थे, आपका पिलर्स सारे रेडी हो गए, ठीक है, ब्रिक्स वगैरह आपने दीवार वगैरह लगा लिया, ठीक है। अब कहानी है नेक्स्ट कि हमें प्लास्टर करने और पेंट चढ़ाने, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सीएसएस का, ठीक है। चलो, तो ये सारे लाइक गूगल से किया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना स्थिर से, ठीक है। मैं टर्म्स में नहीं जा रहा, उससे कुछ लाइक लेना देना है नहीं, आप डेवलपमेंट करोगे मोस्टली, सो मेरा मेन फोकस उस पर है, ठीक है। अब कहानी है कि एडवांटेज ऑफ सीएसएस क्या है, तो लाइक ये टाइम बचाता है। बोलोगे कैसे सर, तो बताता हूँ आपको। देखो, आप इसमें सीएसएस में किसी एक टैग को अगर टारगेट करके आप कोई एलिमेंट्स के स्टाइलिंग करते हो, देन यू कैन रीयूज, लाइक जहां जहां भी वो टैग होगा ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। या फिर आप क्लास नेम के बेसिस पे सीएसएस लिखते हो, देन क्या हो जाएगा, रेफरेंस में आपका जो जहां जहां आप वो क्लास नेम डालोगे ऑटोमेटिकली वो रीयूज हो जाएगा, तो इससे टाइम बचेगा,
ठीक है। अगर आप इनलाइन CSS लिखने जाओगे या फिर कोई और पैरामीटर से स्टाइलिंग करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा चीज़, पेज लोड फास्ट होगा क्योंकि आपने लाइक बहुत कम कोड में बहुत सारे स्टाइलिंग कर पाओगे। तीसरा, मेंटेनेंस, इसका रेगुलर बेसिस पे लाइक मेंटेनेंस होते रहता है तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो ग्लोबली चेंजेस अगर होते हैं तो आपको अपडेट मिलता रहेगा थ्रू द इंटरनेट। देन सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML, लाइक ये अभी सबसे ज़्यादा यूज में है फॉर स्टाइलिंग पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आया है वो है SCSS3, जिसको SAS भी बोलते हैं। वो अपग्रेडेड वर्जन है CSS का। लाइक एक तरीके से बोलो तो इसका कुछ कुछ फीचर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया सो दैट कि आप उसको नॉर्मल बेस से थोड़ा हट करके आप कर सको। ठीक है। देन है आपका मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। आप CSS की हेल्प से अपने वेबसाइट को मल्टीपल डिवाइस में रेंडर हो सके सही से वैसा कर सकते हो, मीन्स आप रेस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हो। लास्ट है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। तो ये जो पैरामीटर्स जो भी आप CSS में यूज करोगे ग्लोबली, आइदर आप इंडिया में बैठ के डेवलपमेंट करो या फिर USA का कोई बंदा हो या फिर मलेशिया से कोई हो, थ्रू आउट द ग्लोब कहीं भी वो कोई है, और अगर वो स्टाइलिंग कर रहा है CSS में तो वो सारे के सारे सेम कीवर्ड्स यूज कर रहे होंगे जो आप यूज करने वाले हो। ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, ग्लोबली वेब स्टैंडर्ड, ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड या किसी भी लैंग्वेज का ग्लोबली स्टैंडर्ड्स होने से क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री के लिए किसी भी जगह पे जाकर के आप काम कर सकते हो, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। देन हमारा फर्स्ट थिंग वो है सिंटैक्स, कि लाइक सिंटैक्स CSS में लिखते कैसे। ठीक है। तो पहले थ्योरी कवर कर देता हूँ, देन फिर हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिक्स करूंगा ना तो CSS समझ में नहीं आएगा। सो मैं पहले थ्योरी पूरा कवर कर दे रहा हूँ, देन हम लोग प्रैक्टिस सेशन में इंटर करेंगे और वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो CSS से यही प्लान रहेगा हमारा। तो सेलेक्टर है, लाइक कि इसमें तीन सिंटैक्स को अगर इसका तोड़ोगे तो तीन सेक्शन है। ठीक है। पहला सेक्शन है सेलेक्टर, मतलब जो आपके लिए ढूंढ करके लाएगा कि किसको टारगेट करना। ठीक है। एक तरीके से समझो कि आप कोई प्राइवेट डिटेक्टिव वाले टीम में काम कर रहे हो। अब कोई आपको लाइक एनिमी आपने फाइंड आउट करा। अब एनिमी फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, आपका एक टीम होगा जो एनिमी फाइंड आउट करेगा, राइट। दूसरा क्या होगा, जो लाइक क्या क्या उस पर ऑपरेशन किए जा सकते हैं वो प्लानिंग करेगा, राइट। और तीसरा होगा एग्जीक्यूशन, होगा ना कि कैसे आप प्लान को एग्जीक्यूट करते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेलेक्टर होता है जो आपको हेल्प करेगा लाइक किस एलिमेंट पे अप्लाई करना वो ढूंढने में। दूसरा हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी, मतलब कि क्या चीज आप चेंज करना चाहते हो वो आप बताओगे। ठीक है ना, कि किस जगह पे आप स्टाइलिंग करना चाहते हो, लाइक किस चीज को आप चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट साइज है या कलर है, बैकग्राउंड को आप चेंज करना चाहते हो या फिर हाइट विड्थ, ये सारे जो चीज है ये प्रॉपर्टीज में काउंट होते हैं। तो क्या आप चेंज करना चाहते हो वो चीज ये हो जाएगा। वैल्यू, वैल्यू में क्या होता है कि क्या कितना आप वैल्यू रखना चाहते हो उस चीज का, तो वो आप पास करोगे। तो इसी वे में आपका सिंटैक्स रेडी होता है CSS का। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, सेलेक्टर देन प्रॉपर्टी, और ये करली ब्रेसेस के अंदर रैप होता है। ठीक है। और उसके कोलोन के बाद वैल्यू लिखते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वैल्यू अगर मल्टीपल CSS आपको लिखने एक साथ, तो आप क्या करोगे, कॉमा डालोगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देन वैल्यू, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर कॉमा प्रॉपर्टी वैल्यू। जैसे पाइथन में डिक्शनरी होता है ना, इन सिमिलर वे आप यहाँ पे लिखोगे। चलो, ये तो हो गया हमारा सिंटैक्स की बारी। नेक्स्ट आता है कि लाइक कि सेलेक्टर्स कितने तरीके के आपके पास अवेलेबल है, आपके पास कितने तरीके का हथियार अवेलेबल है। तो पहला है टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर में क्या होता है कि आप डायरेक्टली एलिमेंट को, ठीक है, डायरेक्टली एलिमेंट का टैग नेम लिख करके आप उस पर स्टाइलिंग कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल में दिया हुआ H1, H1 एक टैग था, राइट, HTML एलिमेंट है ना, आपने पढ़ा होगा। तो उस पर आप डायरेक्टली ये चीज अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली डिवीजन पे अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली H2 पे अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये चीजें टाइप सेलेक्टर में कंसिडर होती हैं। दूसरा जो आपके पास हथियार है वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। लाइक कुछ चीजें ऐसी है जो लाइक थ्रू आउट द वेब पेज आप सेम रखना चाहते हो। ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करोगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया पूरे वेब पेज का, वो आपको सेट करना, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीजें सेट करनी है ग्लोबली, फॉन्ट साइज आपको सेट करना है। तो ये सारी चीजें आप यूनिवर्सल सेलेक्टर की हेल्प से कर सकते हो। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, तो एस्ट्रिक सिंबल है। ठीक है। और फिर आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या होता है कि सपोज कोई आपने एक बनाया डिवीजन, और वो डिवीजन के अंदर डिवीजन है, उसके अंदर एक डिवीजन है, आप उस पर स्टाइलिंग करना चाहते हो। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर को कैसे आप रिलेट कर पाओगे, तो डिसेंडेंट में क्या होता है कि यूएल ईएम दिख रहा ना, तो इसमें क्या मतलब है कि यूएल के अंदर कहीं पे ईएम मैप्ड है। अब कहां पे ईएम मैप्ड है
ये फिक्स नहीं है, वो एक लेयर अंदर भी हो सकता है, 4 लेयर अंदर भी हो सकता है, ठीक है। ट्री स्ट्रक्चर में ये आपको मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा कि कैसे ये कंसीडर करते हैं हम इस चीज को, ठीक है। एक लेयर अंदर है या 4 लेयर अंदर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये यूएल पहले ढूंढेगा, यूएल मिल गया, ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वाला पैरामीटर ढूंढेगा और उसके बाद आप उस पर सीएसएस अप्लाई करेगा। फिर आपका क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर में क्या होता है, जो आप क्लास एट्रीब्यूट में पास करते हो वैल्यूज, उस पे उसके आगे आपको डॉट लगाना होता है, तो डॉट लगा करके क्लास नेम में जो आपने वैल्यू डाला था वो आप पास करो, आपका क्लास सेलेक्टर बन जाएगा। फिर है कहानी आईडी सेलेक्टर का। आईडी सेलेक्टर में क्या होता है कि आईडी में जो आपने वैल्यूज डाले थे उसके आगे हैशटैग लगा दो, आईडी सेलेक्टर बन गया। फिर है चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा बॉडी देन पी, अब इसमें क्या होगा ना कि बॉडी के बाद जितने भी पी है ना बॉडी के अंदर, ठीक है, वो सारे पी पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट वाला, जस्ट नेक्स्ट वाला जो होगा ना उसी पे सिर्फ अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि लेयर में अगर चला गया, सपोज बॉडी है, बॉडी के अंदर डिवीजन है, डिवीजन के अंदर पी है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन बॉडी है, पी है, फिर डिवीजन है, फिर डिवीजन है, फिर पी है, तो जो जो पी एक लाइन में लाई करेगा ना उस पर अप्लाई होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स की नीड पड़ेगी, तो वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली यह स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, ठीक है। मेरी कर्सर दिख रही है सबको, लाइक एक सीट मैंने ब्लैंक सीट ओपन करा है, सबको दिख रहा है? हेलो, दिख रही है? ओके, तो इस पे क्या है ना कहानी कि यहाँ पे जो कुछ भी हम अप्लाई करेंगे, सिंपल सा आपको फंडा ये है कि लाइक हमें लाइक सीएसएस वगैरह यूज करने हैं, तो यहाँ पे कहानी ये होगा, लेट्स स्विच इट टू पेन, यस पेन। देखो यहाँ पे पहला चीज है कि जैसे यहाँ पे बॉडी टैग है, ठीक है, बॉडी टैग के पैरेलल में, ठीक है, इसके अंदर आपका आप इंटर किए, जैसे ट्री आपका कैसे बनता है, ये एक लेयर हो गया, ठीक है, इसके पैरेलल में जितना आएगा इसको हम एक कंडीशन पे लेंगे। अब क्या होगा, इसके अंदर भी तो एलिमेंट्स बनते हैं, इसके अंदर है, इसके अंदर भी सब एलिमेंट्स बन गए, राइट, तो ये सारे एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करेगा। इसमें क्या हो जाएगा कहानी कि सपोज यहाँ पे बॉडी टैग आपका था, ठीक है, फिर बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा था, ठीक है, क्लोज हुआ बॉडी टैग, ठीक है ना, इसके बीच में आपने बनाया पहले डिवीजन, ठीक है, डिवीजन के अंदर पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के पैरेलल में आपने H1 टैग बनाया था कहीं, या लिस्ट बनाया, ठीक है, इस तरीके से बनाया। ये एक यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे फिर डिवीजन है, फिर पैराग्राफ है, तो यहाँ पे जो सेलेक्टर आप यूज कर रहे हो बॉडी फिर डैश पी, तो ये जो सेलेक्टर यूज होगा तो यहाँ पे बॉडी के बाद जस्ट बाद में पी जो लाई करेगा ना इस लेयर में, इस लेयर में कौन कौन सा पी है, एक पी यहाँ पे आपका आया था, दूसरा पी यहाँ पे आया था, ये वाला पी आपका कंसीडर नहीं होगा। ये किस में कंसीडर होगा, अगर आप यूज करते बॉडी, ठीक है, और पी बिना एरो के यूज करते तो ये हो जाता डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है, और उसमें जाकर के आपका काम में आ जाता है। ये कौन सा सेलेक्टर है, डिसेंडेंट सेलेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और ये जो हम यूज करते हैं जितना भी एरो वाला पार्ट है बॉडी डैश पी, तो ये क्या होता है कि इसके बॉडी के जस्ट बाद वाला लेयर में पी होना चाहिए, तो ये आपका कंसीडर होता है आपका चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। ट्री में भी क्या बोलते थे, अगर ट्री आप बनाते हो, नॉर्मल जो आप ट्री पढ़ा होगा इस तरीके से, उसमें क्या बोलते थे, पेरेंट एलिमेंट हो गया, ये दोनों चाइल्ड हो जाता था, राइट, फिर चाइल्ड के अंदर भी अगर और मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है, अब क्या हो जाता था, इस पर्टिकुलर नोड को ये दोनों चिल्ड्रन का लाइक पेरेंट एलिमेंट माना जाता था, ये सब चिल्ड्रन कंसिडर होता था। इन सिमिलर मैनर आपका यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्टर काम करेगा, ठीक है, समझ में आई बात या कोई कंफ्यूजन है? चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंक्लूजन, कि लाइक कैसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आपको 4 इंक्लूजन के टाइप है। पहला है आपका इम्बेड, मतलब जो आप हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा करके सीएसएस लिखते थे, वो कंसीडर होगा आपका एम्बेडेड सीएसएस में, ठीक है। दूसरा इनलाइन सीएसएस, जो आपको बताया था एलिमेंट में डायरेक्टली स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के आप कर सकते हो, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो है वो है एक्सटर्नल सीएसएस, जो आपको बताया था कि हेड टैग के अंदर लिंक
लगा करके आप वहां पे CSS फाइल को इंक्लूड करते हो। फिर लास्ट है आपका इंपोर्ट रूल। इंपोर्ट रूल का क्या कहानी है कि आप डायरेक्टली हेड टैग में @import लिख करके फिर फाइल का लोकेशन डालोगे तो CSS फाइल आप उस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपके 4 मेथड CSS को इंक्लूड करने का इन योर HTML। ठीक है, कौन कौन से 4 मेथड है? फर्स्ट आपका होता है एम्बेडेड CSS, जो हेड टैग के अंदर डायरेक्टली आप स्टाइल टैग यूज करके उसके अंदर सारे CSS लिखते हो, एम्बेडेड CSS। सॉरी एम्बेडेड स्टाइल हो जाता है वो, एम्बेडेड CSS भी बोल सकते हो। दूसरा आपका था इंटरनल CSS, जो आप एलिमेंट में ही स्टाइल एट्रीब्यूट लिख करके उसके अंदर सारे CSS के कोड को आप लिखते हो, वो हो गया आपका इंटरनल इनलाइन CSS। और ये दोनों एम्बेडेड और ये इनलाइन, ये दोनों कहलाता है इंटरनल CSS। क्यों? क्योंकि आपका उसी पेज पे है ना सारा कोड, आइदर वो एलिमेंट के टैग में हो या फिर बॉडी में ऊपर में हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। तो ये चीज था इन जब आप सेम HTML पेज में CSS को लिख दिया, अब कहानी आती है कि आप किसी सेपरेट पेज पे लिखे हो, उसको इंक्लूड करने का 2 तरीका है। पहला एक्सटर्नल CSS में क्या आएगा, लिंक टैग यूज कर लो, और लास्ट जो तरीका है वो है इंपोर्ट @import यूज करके फिर फाइल लोकेशन आप पास करो। तो ये जो चीज है, ये 4 मेथड से आप CSS इंक्लूड कर सकते हो अपने HTML पार्ट पे। अब आती बारी मेजरमेंट यूनिट्स का, कि जब आप मेजरमेंट डालोगे, आइदर फॉन्ट साइज हो, हाइट हो, विड्थ हो, ये सबका मेजरमेंट आप डालोगे ना, तो कैसे डालोगे? तो पहला आएगा पैरामीटर जो आप यूज कर सकते हो, वो है परसेंटेज। 0 to 100% के बीच का वैल्यू आप पास कर सकते हो। ठीक है, इन वैल्यू, ये जो पैरामीटर मेजरमेंट यूनिट, ये सारा का सारा वैल्यू में यूज होता है। ठीक है ना। तो अब दूसरी है सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर में यूज कर सकते हो। फिर है EM जो है क्या होता है, ये रिलेटिव मेजरमेंट है। ठीक है ना। तो ये कैसे मेजर होता है, तो आपका जो वेब ब्राउजर होता है उसका एक डिफॉल्ट सेट किया हुआ होता है, डिफॉल्ट उसका फॉन्ट साइज एक सेट होता है, तो उस फॉन्ट साइज के रिलेटिव में ये चीज सेट होता है। जैसे सपोज आपके वेब ब्राउजर पे आपने फॉन्ट साइज सपोज अपना डिवाइस का सबसे स्मॉल रखा है, तो वो 12 पॉइंट सेलेक्टेड है। अब आप 1 EM डालोगे तो वो 12 पॉइंट होगा, 2 EM डालोगे तो 24 पॉइंट के फॉन्ट साइज हो जाएंगे। ठीक है, 3 EM डालोगे तो 36 पॉइंट के वो चीज हो जाएंगे। ठीक है ना। और अगर 1.1 डालते हो तो 12 इंटू 1.1, जो जितना पॉइंट होगा उतना पॉइंट का वो बन जाएगा। तो ये EM है या रेम, ये दोनों वैल्यू आपका रिलेटिव होता है आपके वेब ब्राउजर के फॉन्ट साइज के पे डिपेंड करता है ये। फिर EX जो है रिलेटिव फॉन्ट एक्स हाइट के लोअर केस लेटर जो होता है उसका रिलेटिव फॉन्ट साइज के बेसिस पे करता है। मोस्टली जो आप काम करोगे वो आप काम करोगे परसेंटेज, EM या रेम या फिर PX में। बाकी जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है उसको आप यूज में नहीं करना, वो सही प्रैक्टिस नहीं है। आई वुड सजेस्ट नेवर टू यूज दैट। ठीक है, ये सारे चीजें यूज कर सकते हो आप, बट मेरा सजेशन होगा कि आप ये सारे पैरामीटर्स ही यूज करना। PX जो पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है, EM जो रिलेटिव होता है कि 1 2 3 4 इस तरीके से। तो EM यूज करने से फायदा ये हो जाता है आपका कि EM जब आप यूज करोगे तो आपके सारे चीजें रिलेटिव में ग्रो करेंगे, आपके जो फॉन्ट साइज होगा यूजर के ब्राउजर का उस पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आपका जो सेक्शन है वो है PX का। तो पिक्सल वाला चीज तो आपको अच्छे से पता है, और ये सारे चीजें आप देख लो। IN है जो इंचेज में है, MM मिलीमीटर में है, PC है जो पिकास है, और ये भी 12 पिकास में क्या होता है 6 पिकास पर इंच होता है एक्चुअली। ठीक है, ये पिक्सल से रिलेटेड है टर्म। PT जो 1/72 पार्ट होता है 1 इंच का। तो ये सारे मेजरमेंट्स के पॉइंट है जो आपको CSS में यूज होते हैं। ये थ्योरी वाला पार्ट है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने का नीड नहीं है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिकली जैसे जैसे बढ़ोगे ना वैसे वैसे आप सेट कर पाओगे। ठीक है, तो घबराने वाला पार्ट नहीं है कि टेंशन में मत आ जाना कि सर कुछ समझ में नहीं आया। जब हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे ना तो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आने लग जाएंगी। फिर आपका नेक्स्ट कलर्स, क्या क्या पैरामीटर्स आप कलर्स में यूज कर सकते हो। तो यही 5 तरीका है जो आप कलर में यूज करोगे। पहला है हेक्स कोड, जो 6 कैरेक्टर वाला हेक्स कोड होता है, वो आप यूज कर सकते हो, जिसमें हर 2 कैरेक्टर R के वैल्यू, नेक्स्ट 2 कैरेक्टर G का वैल्यू, नेक्स्ट 2 कैरेक्टर B का वैल्यू होता है, और आपके इसके आगे हैशटैग इंक्लूड करना होगा। फिर है शॉर्ट हेक्स कोड, फिर है आपका RGB परसेंटेज, मतलब RGB वैल्यू परसेंटेज में। फिर है RGB एब्सोल्यूट, जिसमें आप एब्सोल्यूट वैल्यू 255 के बीच का डालोगे। कीवर्ड है
जो लाइक आप वाइट, रेड, एक्वा, ब्लैक, टेल, ये सब ना आपको जिस भी एडिटर पे आप काम करोगे आपको सजेशन में आ जाएंगे कि क्या क्या कलर्स के जो कीवर्ड है वो आपको अलाउड है। वैसे इसका जो पीडीएफ मैंने डाला है मैं वो आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको ना अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि लाइक क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो आपको कलर्स में डायरेक्टली मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे कलर्स इसमें दिए हुए हैं, तो आप पेज को गो थ्रू कर लेना, आपको बहुत सारे ऑप्शंस में यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। जैसे एक्स कोड के ये एग्जांपल्स हो गए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, तो इस तरीके का कलर कोड है। फिर नेक्स्ट है आपका जे, इतने सारे हेक्स कोड आपको दिए हुए हैं, तो जो भी कलर आप चाहो तो आप यहाँ इसको एज ए चीट सीट यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो ये था आपका चीट सीट, जिसका इतना ही कलर आप वेब में मोस्टली है। अगर आपको कस्टम कोई थीम मिलता है कंपनी की तरफ से जहां आप काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको हैक्स कोड वगैरह बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे हैक्स कोड, या फिर कहो तो कलर्स, ठीक है। आरजीबी वैल्यू में लाइक जैसे जैसे हम काम करेंगे तो वैसे वैसे आप एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। फिर कीवर्ड, वो आपको काम करते करते ना याद हो जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वो है बैकग्राउंड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत जगह पे आप यूज करोगे, ऑलमोस्ट हर डिवीजन, हर सेक्शन जब आप क्रिएट करोगे तो ये सारी चीज़ें यूज करोगे। तो बैकग्राउंड में ये मेजर आपके 6 पॉइंट यूज होते हैं। पहला है बैकग्राउंड कलर, आपको कोई कलर सेट करना है बैकग्राउंड में तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करते हो। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज यूज करना है, बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा बैकग्राउंड में इमेज यूज हुआ है, तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी से वो सेट होता है, ठीक है। और वैल्यू में यूआरएल पास कर सकते हो आप उसका, ठीक है, जहां पे आपका इमेज है तो वो इमेज आपका एज ए बैकग्राउंड आ जाएगा। फिर अब बैकग्राउंड रिपीट, सपोज आपका इमेज जो है छोटा छोटा रेजोल्यूशन में है, अब आप चाहते हो कि वो इमेज ही रिपीट हो जाए पूरे एरिया में, जितना एरिया में आपने बैकग्राउंड लगाने हैं। जो वॉलपेपर जो आपके घर पे आप लगाते हो नॉर्मली, तो क्या होता है रिपीटेड पैटर्न ही होते हैं ना, एक पैटर्न बनता है। तो आप उस तरीके का चीज यूज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। फिर आपका बैकग्राउंड पोजीशन, जो ये बताता है कि पोजीशन कहाँ होगा इमेज का, जो आप बैकग्राउंड में इमेज यूज कर रहे हो उसका पोजीशन क्या होगा। नेक्स्ट आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट, इससे होता है कि लाइक स्क्रॉल होगा तो क्या होना है, ठीक है। फिर है आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, जिसमें आप सारा कुछ एक साथ डाल सकते हो। ये शॉर्ट हैंड है वही ऊपर के 5 पैरामीटर्स का, ठीक है। तो अब ना हमारी बारी है यूज करने का, कि लाइक कैसे इसको, इतना तो सीख लिया सर, कैसे यूज करेंगे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो 2 चीजें, पहला बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीजें। दूसरा जो सीखेंगे वो है कलर्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और सेलेक्टर्स वगैरह कैसे सेलेक्टर्स यूज होते हैं। तो डे 7 का एक फोल्डर बना लीजिए, फटाक से न्यू फाइल बनाइए, Ctrl+X index.html। और आज हम पहले इंक्लूजन वाला आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इंक्लूजन करते हो। तो सेम तरीके से HTML फाइल पहले बनाएंगे, हमारा बन गया फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमारे CSS का कहानी है, तो एक CSS फाइल पहले बना लेते हैं। तो डे 7 फोल्डर पे गया, न्यू फाइल, Ctrl+S style.css, ठीक है। अब इसमें सेव कर लिया। अब देखो पहला इंक्लूजन का तरीका क्या था, एम्बेडेड CSS। तो एम्बेडेड CSS कैसे काम करता है वो देखिए। यहाँ पे जब आप स्टाइल एट्रीब्यूट टैग यूज करते हो ना, और यहाँ पे आप कुछ भी करते हो, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का एक नाम जिक्र किया था मैंने, ये आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। अगर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में डायरेक्टली मैं सेट कर रहा हूँ रेड, इससे क्या होगा ना रेड बैकग्राउंड बन जाएगा। हाइट से क्या होता है, हाइट मतलब कितना हाइट होगा उस पर्टिकुलर सेक्शन का वो चीज़, तो मैं इसको कर रहा हूँ 100%। 100% सेट करने से क्या होता है कि ये पूरा पेज कवर अप करेगा। अभी कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ है ना, तो क्या होगा, कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा होने से ये बाय डिफॉल्ट कुछ भी हाइट नहीं लेता, और जैसे जैसे आपका डॉम एलिमेंट बनता है वैसे वैसे ये हाइट बनते जाता है। तो हमने रेड कलर बैकग्राउंड में सेट करा था, राइट। अब बैकग्राउंड रेड लिखोगे तो भी बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। अगर आप इसके जगह पे बैकग्राउंड कलर यूज करते हो, ठीक है, तो भी ये रेड हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर में भी मैंने वैल्यू पास करा, देखो ये रेड हो जाएगा। आउटपुट जो है मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो रिफ्रेश करने के बाद भी ये रेड है, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो जो 3 तरह का वैल्यू मैंने बताया था, क्या था, पहला हैशटैग 6 डिजिट वाला था, R का वैल्यू FFB0G0 सेट हो गया। इसमें देखो आपको रेड दिखेंगे, ये हेक्स कोड है रेड कलर का, ठीक है। तो रेड है। अब ब्लैक करके दिखा देता हूँ सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए। तो ब्लैक के लिए 00 यूज होता है, ठीक है। तो कोई भी पिगमेंट्स नहीं सेलेक्ट हुआ, तो ये सारा का सारा देखो ब्लैक हो गया।
राइट। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। फिर है आप चाहते हो कि वाइट बैकग्राउंड रहे, तो वाइट के लिए क्या यूज करोगे, एफ 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 6 टाइम्स, ठीक है। आप इसको रिफ्रेश करो, ये पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। हो गया। तो इस तरीके से हम सेट करते हैं यूनिवर्सल वाला पार्ट, यूनिवर्सल सेलेक्टर जिसको बोलते हैं। ये था हमारा तरीका, क्या कौन सा, एम्बेडेड स्टाइल, ठीक है। अब इसी चीज को हम चाहे तो बॉडी टैग में लगा करके इनलाइन में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाला हमने हाइट 100%, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या चाहिए अपने को, ग्रीन। अब क्या होगा, ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा बॉडी टाइप का। देखो रिफ्रेश कर रहा हूं, हो गया ग्रीन। तो ये है हमारे इनलाइन। तो डिफरेंस दो समझ में आ गया, एम्बेडेड सीएसएस हमने देख लिया, इनलाइन सीएसएस हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है लाइक एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या करेंगे, स्टाइल डॉट सीएसएस में गए और यही सेम चीजें, ठीक है ना। इसको यहां से मैं हटा दे रहा हूं। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं पहले। तो हम लगाते हैं बॉडी टैग पे कि बॉडी टैग का हाइट जो है वो करना 50%, अभी मैं 50% कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अब देखना हाफ पेज तक ही इसका बैकग्राउंड कलर दिखेगा आपको। और बैकग्राउंड क्या रखूं, कोई भी एक कलर बता दो आप अपने चॉइस का। येलो रखें, चलो येलो रखते हैं, ठीक है। अभी कुछ भी आउटपुट आया नहीं आया, क्यों, रीजन क्या कि हमने फाइल तो बनाया, इसको कनेक्ट कहाँ कर रहा है यार। अब इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिंक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, राइट। और लिंक में क्या रखेंगे, यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश करते हैं, आ गया। अब विड्थ में बोलोगे सर यहाँ पे आपने तो 50% डाला था बट ये यू आया 100% पे। तो ये लाइक परसेंटेज वाला जो पैरामीटर है ये अगर नहीं काम करता आपका, किसी टाइम किसी ब्राउजर में सपोर्ट करेगा किसी में नहीं, तो आप इसको कर देना VH, जिसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट मतलब क्या होता है कि जो आपका विंडो होता है ना किसी भी स्क्रीन पे, उसका ये वाला हाइट को ऑब्जर्व करेगा, ऊपर से नीचे तक का ये वर्टिकल हाइट। और ये एक्स एक्सिस पे जो है इसको VW वर्टिकल विड्थ बोलते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल विड्थ इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको VW बोलते हैं, व्यू पोर्ट का विड्थ। और VH व्यू पोर्ट का हाइट, इसको व्यू पोर्ट कंसिडर करते हैं, जो एरिया होता है जिसमें वेबसाइट डेवलप डिजाइन होता है। ये वाला एरिया ऊपर वाला टास्क बार जो भी होता है इसको कंसिडर नहीं करता है। ये जो विंडो जहां से येलो स्टार्ट हुआ ना, येलो स्टार्ट हुआ वहां से लेकर के नीचे तक का जो दिख रहा है बस यहाँ तक स्क्रॉल करोगे तो नहीं, सिर्फ यहाँ तक का व्यू पोर्ट कंसिडर होता है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट्स आते हैं। चलो ये तो कहानी हो गया हमारा CSS वाला पार्ट पे, कि हमने बैकग्राउंड सेट करा और ये सारी चीजें सेट करी और ये काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर था वो था हमारा क्या, इंपोर्ट। इंपोर्ट वाला में भी क्या था कि हम यहाँ पे @import से इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इंपोर्ट करा एंड स्टाइल डॉट CSS, इससे भी हमारा CSS इंपोर्ट होता है। बट ये ब्राउजर टू ब्राउजर वैरी करता है, लाइक कुछ ब्राउजर में आपको सपोर्ट मिलेंगे, कुछ ब्राउजर में सपोर्ट नहीं मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं लिया, राइट। तो बहुत सारे ब्राउजर में ये चीज सपोर्ट में लेगा, बहुत सारे में सपोर्ट नहीं लेगा। तो आप आगे में इसके ये टैग लगा करके चेक कर सकते हो, अगर उस पर लेता है तो लेता है, नहीं लेता देन दिस ब्राउजर इज नॉट सपोर्टिंग लाइक इंपोर्ट टैग एनी मोर। तो आप क्या करोगे, ये जो इंपोर्ट वाला जितने भी सेक्शंस हैं ये आप अपने CSS में यूज कर सकते हो। ये जो स्टाइल वाला फाइल है ना, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने बनाया एक और फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ इसका नाम रखा style1.css, ठीक है। अब इसको इसमें मैंने h1 टैग का CSS लिख रहा हूं मैं, ठीक है। h1 टैग का CSS लिख रहा हूं। h1 टैग पे मैंने करा कि इसका कलर जो होगा वो ग्रीन रखना, ठीक है। h1 का स्टाइल इसमें नहीं है, अब इसमें इंपोर्ट कर सकते हो आप @import, ठीक है। और यहाँ पे आप इंपोर्ट कर दो style1.css को, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया। अब कहानी ये है कि अब यहाँ पे h1 टैग हम लोग बनाएंगे एक, ठीक है। और देखते हैं कि जो हमने लाइक CSS लिखा है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा CS लाइक H1 कोड है। अब इस पे देखता हूं मैं
कि ये कंप्लीटली वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। देखो हेलो वर्ल्ड आया, अब यहाँ पे देखोगे अगर तो ये काम नहीं कर रहा है। अब बोलोगे सर कैसे काम नहीं कर रहा है, आपने बोला था काम करेगा। तो यहाँ पे कहानी ये है कि आपने स्टाइल डॉट सी एस एस में तो इसको कनेक्ट करा स्टाइल वन डॉट सी एस एस को, बट हमने इसमें कनेक्ट नहीं करा, राइट। तो यहाँ पे अब कनेक्ट करेंगे लिंक टैग के थ्रू, और लिंक टैग से हमने कनेक्ट करना है किसे, ठीक है। लिंक टैग से जो हम कनेक्शन करेंगे वो किसका होगा, तो हम कनेक्ट करने जा रहे हैं इसमें हो जाएगा आपका रिलेटिव, रिलेटिव में स्टाइल सीट एंड देन एच आर ई एफ में आपका हो जाएगा स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। इस तरीके से हमने कनेक्ट करा। अब देखते हैं डिफरेंस कि क्या आता है। देखो अगर आप कंसीडर करो लाइक जूम करके अगर आपको दिखा पाऊँ तो बेहतर होगा। यस देखो ये ग्रीन कलर है, अगर आपको नहीं ग्रीन कलर दिख रहा तो मैं इसको व्हाइट कलर में कन्वर्ट करता हूँ सो दैट कि ये इजिली विजिबल हो। तो स्टाइल डॉट सी एस एस पे मैं गया, कलर को मैं कर दे रहा हूँ व्हाइट, ठीक है। और साथ ही साथ हेलो वर्ल्ड जो है इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दे रहा हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मैं इसको कर दे रहा हूँ अपर केस। अब क्या होगा, सारा का सारा जो है ना कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये मिक्स है, मैं रिफ्रेश करूंगा, अगर वो फाइल इंपोर्ट हुआ होगा सही से तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो व्हाइट कलर हो गया और ये कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। हुआ या नहीं हुआ, हेलो, यस। तो आप इस तरीके से सीएसएस को लाइक इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। तो ये था हमारा इंक्लूजन वाला सेक्शन। 4 तरीके थे, चारों तरीके मैंने आपको करके दिखाए। अब है नेक्स्ट हमारा लाइक जो हमने बताया था आपको 6 तरह के सेलेक्टर्स, राइट। अब सेलेक्टर्स आपको एक एक करके दिखाते हैं। H1 टैग है, H1 टैग पे सारे सेलेक्टर्स आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। ये जो टाइप है ये कौन सा टाइप है बता सकते हो कोई, आपको जस्ट अभी बताया था ये टाइप कौन सा है, एनीवन, कोई बता सकता है कौन सा सेलेक्टर है ये, टाइप सेलेक्टर याद है, ये टाइप सेलेक्टर है। हमने क्या करा है, एचटीएमएल टैग को डायरेक्टली टारगेट करा, राइट। तो ये है हमारा टाइप सेलेक्टर, ठीक है। तो कमेंट कैसे ऐड करते हैं जो बताता हूं आपको, ये कमेंट डालने का तरीका है, ठीक है। स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट होगा आपका कमेंट, एस्ट्रिक स्लैश पे आपका कमेंट खत्म होगा। ये हो गया हमारा टाइप सेलेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कोई बता सकता है एनीवन। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था, यूनिवर्सल सेलेक्टर, राइट, पढ़ा था। अगर मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर से मार्जिन डालूंगा ना, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर आपका एस्ट्रिक, अगर मैं डाल रहा हूं मार्जिन 50 px डालता हूं सो दैट कि आपको दिखे डिफरेंसेस 50 px, तो ये ना ऑटोमेटिकली हर एक एलिमेंट पे, हर एक चीज पे 50% का मार्जिन अप्लाई करेगा। ये देखो अभी सब सटा सटा है, लगाया मैंने, देखो 50 px का ऊपर से मार्जिन, लेफ्ट साइड से मार्जिन, राइट साइड से मार्जिन, सब जगह से डाल दिया, डाला या नहीं डाला। तो ये था मार्जिन वाला पार्ट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या होता है कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाता है। इनफैक्ट मैं H1 टैग है यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको तसल्ली मिल जाएगा। एक पैराग्राफ हमने बनाया और पैराग्राफ में लिखा दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा कि ये पैराग्राफ भी ना आपका मार्जिन के साथ आएगा, क्योंकि H1 पे तो ठीक है हमने कुछ स्टाइलिंग करा भी था, पैराग्राफ पे तो नहीं करा ना यार। देखो पैराग्राफ जो हमारा है क्या हुआ, यहां तो ठीक है ऊपर से पैडिंग मार्जिन लिया सॉरी, यहां पे भी देख रहे हो आप पैराग्राफ भी खुद से मार्जिन लिया है, लिया या नहीं लिया, H1 से मार्जिन लिया ना पैराग्राफ, राइट। तो ये इस तरीके से आपका काम करेगा यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो ये हो गया आपका दूसरा सेलेक्टर। तीसरा जो हमने सेलेक्टर पढ़ा वो सेलेक्टर कौन सा था, डिसेंडेंट सेलेक्टर, राइट। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे डिसेंडेंट सेलेक्टर पे। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर का क्या है कहानी, उसमें क्या था कि आप टारगेट किस तरीके से करते हो कि पहले आप लाइक
डिसेंडेंट सेलेक्टर का कहानी क्या है कि आपका जितने भी लाइक ट्री टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, डॉम डॉम जो आपके हैं ट्री टाइप के बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डिवीजन बनाया, ठीक है, डिवीजन, इसके अंदर हमने लिया यूएल, यूनिवर्सल लिस्ट, ठीक है, सॉरी अनस्टाइल्ड लिस्ट, मैं यूनिवर्सल लिस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी। एल आई टैग लिया, एल आई टैग पे मैंने लिखा दिस इज अ लिस्ट। अब मेरी मर्जी है कि मैं इस लिस्ट को, ठीक है, ये जो लिस्ट वाला आइटम है ना, इस लिस्ट आइटम को रेड कलर में कन्वर्ट करूं। मेरी मर्जी क्या है कि मैं इस लिस्ट आइटम को रेड कलर में कन्वर्ट करूं, ठीक है। देखो दिस इज अ लिस्ट है, पहले तो मैं जूम थोड़ा कम कर दे रहा हूं, ये कुछ ज्यादा अजीब हो जा रहा है। यस, दिस इज अ लिस्ट है, इसको मैं रेड कलर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो मैं डिसेंडेंट सेलेक्टर कैसे यूज कर सकता हूं? अभी तो एक बार लिस्ट है, राइट, एक ही जगह लिस्ट यूज हुआ ना पूरे वेब पेज में, तो मैं डायरेक्टली एल पे भी करूंगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जब आप वेब पेज पे काम करोगे, एक्चुअल वाला वेब पेज डिजाइन करोगे, तो ऐसा फिक्स नहीं है ना कि आपका एक ही जगह पे लिस्ट यूज हुआ हो, मल्टीपल जगह पे यूज हो सकते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली एल पे नहीं कर सकते अप्लाई। तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके का सेलेक्टर यूज करोगे। आप बताओगे कि पहले आपको डिवीजन मिलेगा, जैसे आपका एड्रेस होता है ना, घर का एड्रेस, तो क्या होता है, पहले आप क्या बताते हो, सपोज कोई नए सिटी से आपके पास कुरियर लेकर के आ रहा है, नया कुरियर बॉय है, वो कैसे कैसे पहुंचेगा, तो पहले तो वो आपका स्टेट पहुंचेगा, राइट, स्टेट के नाम से सॉर्ट आउट करेगा कि इस स्टेट में हमको इंटर करना है। अब वो स्टेट में इंटर कर गया, स्टेट में अब वो आपके शहर को सॉर्ट आउट करेगा कि इस शहर में मुझे जाना है, फिर वो आपके शहर तक पहुंचा। आपके शहर में पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, आपके मोहल्ला में पहुंचेगा, आपके मोहल्ला में पहुंचने के बाद आपका लैंडमार्क पे पहुंचेगा, आपका लैंडमार्क में पहुंचने के बाद वो कहाँ जाएगा, लैंडमार्क के बाद भी आपने एक दिया होता है नियर करके पैरामीटर, आपने आप यूज करते हो ना, नियर या इन बिसाइड ऑफ और समथिंग लाइक दैट, तो आपके आस पड़ोस में पहुंचेगा। उसके बाद फाइनली आपका घर नंबर फाइंड आउट करके आपको कुरियर डिलीवर करेगा, राइट। इन सिमिलर मैनर आप इसको, आपका ये समझ लो कि ये कुरियर बॉय है, इसको पहुंचाना है एल तक, तो आप क्या बताओगे, पहले डिवीजन ढूंढो, डिवीजन के बाद तुम्हें यूएल मिलेगा। जैसे बताते हैं ना रास्ता, नॉर्मली रास्ता बताते कैसे बताते हैं, आप यहाँ से जाओ, राइट टर्न पे, राइट एक चौराहा आएगा, वहां पे राइट टर्न लेना और लेफ्ट साइड में आपको ये शॉप मिलेगा। उसी तरीके से हम इसको बता रहे हैं कि पहले डिवीजन मिलेगा आपको, डिवीजन के बाद आपको यूएल टैग मिलेगा, यूएल टैग के बाद आपको एलआई टैग मिलेगा, और आप उस एलआई टैग का कलर जो है रेड कर देना मेरे लिए, ठीक है। ये टास्क आपने इसको दिया। अब देखते हैं रिफ्रेश करके कि ये चीज काम करता है नहीं करता। देखो कर दिया रेड, राइट। अगर थोड़ा भी गलती कर दोगे ना एड्रेस मतलब सिलेक्शन वाले पार्ट पे, अगर मैं यहाँ पर गलती से पैराग्राफ ऐड कर दूं ना कि ये पैराग्राफ मिलेगा उसके बाद एलआई मिलेगा, अब देखो आपका रेड वाला जो कलर है वो हट जाएगा, क्योंकि ये गलत घर में पहुंच गया, ठीक है। अब वो पैराग्राफ ढूंढा, पैराग्राफ तो उसको मिल ही नहीं रहा, कैसे पहुंचेगा उस सही लोकेशन तक, ये तब पहुंचेगा जब आप यूएल के अंदर एक पैराग्राफ बनाते हो और उस पैराग्राफ के अंदर एलआई को रैप करोगे। अब देखो इसी एलआई को मैं पैराग्राफ में अगर रैप कर दे रहा हूं तो ये इस पे काम कर जाएगा, देखो, ठीक है। और एक नॉर्मल एलआई टैग दे देता हूं जिससे ना आप रेफरेंस लगा पाओगे कि हाँ किस पे काम कर रहा है किस पे नहीं। दिस इज अ सेकेंड लिस्ट, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि किस पे रेड करा किसको नहीं करा। देखो ये चीज है। अब पैराग्राफ में जाना था, पैराग्राफ के बाद एल आई, यस, ठीक है। यूएल के अंदर पैराग्राफ काम नहीं करता है, ठीक है, तो ये चीज अटक रहा है थोड़ा। एक काम करते हैं, एक और डिवीजन बना देते हैं, ठीक है। डिवीजन के अंदर डिवीजन, उसके अंदर यूएल, उसके अंदर एल आई। तो आप इसको पैराग्राफ में रैप करने के बजाय हम क्या करते हैं, ये यूएल टैग जो है ना हमारा, ठीक है, हाँ पैराग्राफ रहने दो यार, पैराग्राफ पे काम करेगा, यूएल टैग हमने बंद नहीं करा था, दैट वाज आवर फॉल्ट, ठीक है। यूएल बंद करा, अब यहाँ पे पैराग्राफ रख सकते हो, ठीक है। तो यूएल के अंदर पैराग्राफ लिया हमने, पैराग्राफ के अंदर एलआई लिया, ठीक है। अब इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका सीएसएस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने इस टैग पे गया, ये जो लिस्ट है ना इस पे आते हैं डिवीजन, डिवीजन के अंदर यूएल, यूएल के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर आप देखो तो एलआई नहीं है, पैराग्राफ के बाहर है एलआई और फिर पैराग्राफ है, इसलिए ये काम नहीं किया, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर हमने यूज करा वो गलत है, तो आप इसको पैराग्राफ के जगह पे एक काम करो, एलआई के अंदर पैराग्राफ लिख दो। एलआई के अंदर जो पैराग्राफ है उस पर आप कर सकते हो, एलआई के अंदर पैराग्राफ आप रख सकते हो, दैट इज अलाउड। तो आप एलआई के अंदर पैराग्राफ ले लो,
और ये हो गया हमारा पैरामीटर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये नॉर्मल लिस्ट है, इस पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ पैराग्राफ वाला पे अप्लाई होगा। चलो देखते हैं क्या है आउटकम। रिफ्रेश करा, अब देखो क्या हुआ, ये दिस इज अ लिस्ट किस पे आया, जिसके अंदर हमने रेफरेंस डाला था। क्या डाला था कि एल आई पे पहुंचने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना और पैराग्राफ ढूंढना है। तो देखो एल आई तक पहुंचा, उसके बाद पैराग्राफ ढूंढा, इसमें पैराग्राफ नहीं था तो नहीं हुआ। तो जैसे ही आप इसमें पैराग्राफ लगा दोगे ना, अब ये सेकेंड लिस्ट जो है वो भी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, देखो हो गया। तो ये कैसे जा रहा है, एक एक करके ये ढूंढ रहा है, राइट, लेयर बाय लेयर। अब ये नहीं है ना कि लाइक आपका डिवीजन के अंदर अगर आप डिवीजन बना दोगे तो नहीं चलेगा, काम चलेगा। सपोज यहाँ पे मैं कंफ्यूज करता हूँ इनको, क्या करता हूँ कि एक सेक्शन बना देते हैं अंदर, जबकि ये सही चीज नहीं है, सेक्शन के अंदर डिवीजन बनता है। बट हम अभी फन के लिए, फॉर आवर फन, आपको समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या करा, कंफ्यूजन डाला, क्या करा, डिवीजन तो बताया, सेक्शन नहीं बताया इसको। ठीक है, और उसके बोला यूएल मिलेगा, यूएल के अंदर एल आई मिलेगा, एल आई के अंदर पी मिलेगा। अब देखो फिर भी ये काम करेगा, ये इतना स्मार्ट है। ठीक है, देखो काम किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, सेक्शन था, रिफ्रेश कर दे रहा हूं मैं फिर भी ये काम करेगा। तो कहानी ये है ना कि आप जो रेफरेंस बताओगे ना, बीच में आप स्किप कर सकते हो, बट एक्स्ट्रा चीजें आप माइलस्टोन्स नहीं ऐड कर सकते। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, तो हमने 3 कवर अप कर लिया। चौथा है क्लास सेलेक्टर, जो आपको पहले भी यूज करके दिखाऊं। क्लास सेलेक्टर के लिए क्या है, जैसे पी पैराग्राफ जो नॉर्मली है उसका क्लास में रखता हूं HSR। अब मेरी मर्जी है कि जो HSR है, ठीक है, अब HSR पे जहां भी क्लास सेलेक्टर के लिए क्या यूज होता है, डॉट, याद रखिएगा, ये हो गया हमारा क्लास सेलेक्टर। ठीक है, तो क्लास सेलेक्टर में क्या यूज होता है, डॉट। तो हम क्या करेंगे, डॉट देन क्लास नेम HSR। अब मैं बोल रहा हूं कि टेक्स्ट डेकोरेशन, मतलब इसके अंदर अंडरलाइन लगा, सॉरी अंडरलाइन लगा दो। ठीक है, अब देखते कि पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन आया या नहीं आया। तो हमने क्लास से सेलेक्ट करा, तो देखो दिस इज अ पैराग्राफ हो गया। ये दोनों भी पैराग्राफ है ना, याद करो, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, दिस इज सेकंड लिस्ट भी पैराग्राफ है, बट सिर्फ और सिर्फ दिस इज अ सैंपल पैराग्राफ, जहां पे क्लास डाला था वही अंडरलाइन हुआ। अब क्या करते हैं, सेकंड लिस्ट जो है ना उसमें ये सेम क्लास डालते हैं, उस पैराग्राफ में सेम क्लास डालते हैं और देखते हैं कि अप्लाई होता है नहीं होता है। अब इसमें गया और क्लास डाला HSR। अब देखते हैं सेकंड लिस्ट के अंदर पैराग्राफ आता है, सॉरी अंडरलाइन आता है या नहीं आता है। अब आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो क्लास सिलेक्टर है ना वो ढूंढता है कि किसके किसके पास ये क्वालिटी है। जैसे आपके क्लास में सपोज आपके कॉलेज में या फिर आपके कोई कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि अगर सपोज डांस का कोई परफॉर्मेंस है तो उस स्टूडेंट को सिलेक्ट करा जाता है जिसको डांस आता है, या ऐसे को भी सिलेक्ट कर लिया था जिसको डांस से कोई लेना देना नहीं, उसको स्टेज पे चढ़ा दिया कि तुम डांस करो। ऐसा होता है क्या, नहीं ना, उसी को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें वो क्वालिटीज होते हैं। तो उसी तरीके से जब भी आप क्लास सिलेक्टर यूज करोगे ना, तो पूरे थ्रू आउट द पेज में, थ्रू आउट द HTML पेज आपका ये ढूंढेगा कि किसके किसके पास ये क्लास नेम है, और जिसके जिसके पास वो क्लास नेम होगा उस पर वो सारे स्टाइल्स जो आप प्रॉपर्टी और वैल्यू सेट करोगे वो अप्लाई कर देगा जबरदस्ती। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या कहानी कि ये तो हो गया क्लास सेलेक्टर का। अगला जो सेलेक्टर है वो है आईडी, और आईडी जो है यूनिक सेलेक्टर है, लाइक यूनिकली रखते हैं, पूरे पेज पे एक ही के पास होता है। जैसे इस पैराग्राफ पे HSR है, इसका मैं इसी पैराग्राफ में मैं आईडी सेट कर रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं कि आईडी इसका हो जाएगा सपोज HSR। ठीक है, और HSR क्लास नेम और आईडी दोनों सेम हो सकता है, बट सेकेंड उसी नेम का आईडी आप नहीं पास कर सकते, याद रखिएगा। तो आईडी सेलेक्टर में हमने क्या करा, कैसे करेंगे, #HSR। अब देखो कलर जो है ना मैं उसका कर रहा हूं ब्राउन। ठीक है, रेड और ब्राउन नहीं दिखेगा आपको डिफरेंस। कौन सा कलर करूं मैं, एक्वा करता हूं। एक्वा होता है जो ब्लू कलर का होता है कलर, तो आपको दिखेगा डिफरेंस। तो मैंने क्या करा कि इस पैराग्राफ पे इसको बोला CSS को कि जाओ जहां पे आपको आईडी मिले ना वो कलर एक्वा कर देना। देखो ये एक्वा कलर है, ठीक है, मे भी आपको दिख नहीं रहा हो क्लियर बट चलेगा, बट आपको यहाँ पे ये चीज डिफरेंस तो दिख रहा हो कि ये कलर चेंज हो गया है, राइट। चलो ये आपको क्लियरली दिखाते। तो वो कलर आपका चेंज हुआ, तो कैसे हुआ, अब इस पे 3 CSS लगा हुआ था ना। पहला CSS आपने लगाया था जो था डिसेंडेंट सेलेक्टर से, ठीक है। दूसरा जो CSS आपने अप्लाई करा वो क्लास सेलेक्टर से।
तीसरा जो CSS आपने अप्लाई करा वो HSR ID से करा। देखो CSS में क्या होता है ना, ये नीचे वाला लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है? नीचे वाला लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। सपोज आपने घर पे एक पेंटर रखा, ठीक है, और आप उस पेंटर को पहले बोला, आपके पापा ने बोला कि जाओ जाकर के रेड कलर का दीवार कलर करो, उसने रेड कलर कर दिया। अब आपकी मम्मी आई, मम्मी उसको फिर बोली सेम दीवार को जाके व्हाइट करो, उसने व्हाइट कर दिया। फिर आपका मन में कुछ और हलचल आया, आपने उसको ग्रीन कलर थमाया और उसको बोला जाके ग्रीन पेंट कर, और वो ग्रीन पेंट करके बैठा हुआ। अब आपके पापा आए, बोले मैंने तो उसको रेड करने बोला था, ये ग्रीन कलर का दीवार कैसे? राइट? इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन आपको HTML में भी आएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट इंस्ट्रक्शन आप पास करोगे, लास्ट इंस्ट्रक्शन में जो सबसे नीचे लाई करेगा ना CSS में, वो अप्लाई रहेगा लास्ट में। तो देखो ये आईडी एक को अभी अप्लाइड है ना, अगर मैं इसको उठा करके ऊपर कर दूंगा ना, ये क्लास सेलेक्टर के ऊपर, ठीक है, चलो डिसेंडेंट के भी ऊपर कर दे रहा हूं, अब देखना जो कलर है वो एक्वा नहीं रहेगा। क्या होगा कि पहले मैंने आईडी सेलेक्टर से उसका कलर एक्वा करा, ठीक है, ये लाइव सर्वर नहीं है तो मे भी डिफरेंस आपको ना दिखे, बट ये आईडी यूनिकली है तो ये चीज हो सकता है। नेक्स्ट कहानी क्या है कि जैसे ही ये रेड करा मैंने, इसको अगर मैं इंपॉर्टेंट टैग डाल दूंगा ना, जब इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं, इंपॉर्टेंट मैंने डाला, आईडी का प्रायोरिटी सबसे हाई होता है, ये चीज भी याद रखिएगा। तो ये चीज जैसे उसका इंपॉर्टेंट करा, देखो अब क्या है, पैराग्राफ वाला भी अप्लाई हुआ, ठीक है, अंडरलाइन, और ये रेड कलर है, और रेड कलर वाला जो पार्ट है वो क्या है, इसके तो नीचे है, एक्वा वाले के नीचे है, ठीक है, इसका सिर्फ प्रायोरिटी हाई था इसलिए रिफ्रेश करने पे वो एक्वा दिख रहा था। जैसे इसका प्रायोरिटी मैंने हाई सेट करा इंपॉर्टेंट टैग लगा करके, ये जो कहानी है इसको ओवरराइट कर गया। तो याद रखिएगा CSS ओवरराइट कर जाता है हमेशा, ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंट टैग लगा हुआ, अब फिर नीचे भी डालूंगा ना तो फर्क नहीं पड़ता, वो रेड ही रहेगा, ठीक है, अनटिल और अनलेस मैं इंपॉर्टेंट टैग नहीं हटाता हूं। तो ये था आपका जोर जबरदस्ती कैसे होगा या फिर CSS काम कैसे करता है वो कहानी, ठीक है। तो ये आपके 6 सेलेक्टर में से कितने सेलेक्टर हुए, 1 2 3 4 5 ही हुए, एक छूट रहा है, वो छूट रहा है, वो है आपका चाइल्ड सेलेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से आप देखना, ठीक ना। मैं क्या करता हूं, ये पूरा क्लियर कर रहा हूं, ठीक ना, A to Z को ऊपर से नीचे तक क्लियर कर रहा हूं, या सॉरी रहने देता हूं, कमेंट कर देता हूं, बेहतर होगा, रेफरेंस के लिए फिर आपको मिलेगा नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक डिवीजन बनाते हैं, इस डिवीजन का क्लास नेम रखते हैं HSR, ठीक है, फर्स्ट लेयर हुआ ये। अब इसके पैरेलल में पैराग्राफ एक बनाया, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर भी एक और डिवीजन बनाते हैं, ठीक है, इस डिवीजन का जो है क्लास नेम जो है वो रखेंगे टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर भी एक पैराग्राफ मैं बना रहा हूं, कहानी समझिएगा कैसे ये काम करेगा जो, ठीक है। यहां पे भी सेम तरीके से मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। तो यहां तक हमने बनाया, और इसके पैरेलल में एक और पैराग्राफ ले लेते हैं और इसको लिखते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। ये हो गया हमारा बन करके रेडी। अब देखते हैं इसका आउटपुट, तो क्या होगा, 3 बार पैराग्राफ 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 लिखा हुआ है, 3 लाइन आपको दिखेगा, देखो है ना, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। चलिए अब जो कहानी है, पैराग्राफ पे हमने लगा करके रखा था HSR जो क्लास है, HSR क्लास पे हमने लगा के रखा है अंडरलाइन वाला, इसलिए लग रहा था HSR 1 कर दे रहे हैं इसको, क्लास नेम हमने चेंज कर दिया तो अंडरलाइन वाला जो पैरामीटर था वो भी अब काम नहीं करेगा, ठीक है, क्लास नेम चेंज हो गया, CSS नहीं वर्क करेगा। ये है हमारा। अब हमें इस पे लगाना चाइल्ड सेलेक्टर। तो चाइल्ड सेलेक्टर कैसे काम करता है वो आप देखना। हम अप्लाई कर रहे हैं कि मेरा मर्जी ये है कि HSR 1 के बाद, HSR 1 के बाद जस्ट बाद आपको अगर पैराग्राफ मिलता है, उसका कलर जो है ना आप कर देना ब्राउन, ठीक है। HSR के जस्ट बाद, ये क्लास नेम के बाद आपको जस्ट बाद आपको पैराग्राफ मिलता है तो आप उसका कलर क्या कर देना, ब्राउन। अब आप देखो किसका किसका कलर ब्राउन चेंज होता है, बता सकते हो किसका किसका चेंज हुआ, बताओ। फर्स्ट और थर्ड का, सेकंड का चेंज हुआ क्या, सेकंड का चेंज हुआ, कोई भी बताओ, एक दिख रहा है आपको चेंजेस ब्राउन कलर का, ठीक है। तो इसका आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे ना, एक्चुअली
इसका जब एक्चुअल लाइक डिजाइनिंग आप बनाने जाओगे, आपको एकदम रफ जो बोलते हैं लाइक सबसे सिंपल वे में अगर मैं जाऊं और आपको इसका डिजाइन बना के दिखाऊं ना, तो इसका जो डिजाइन है वो कैसा बनेगा वो बताता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है वो आप कंसीडर करना। ये है हमारा वेब पेज। ठीक है, पूरा इसका मैं लाइक ज्योमेट्री टाइप तोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये बीच वाला पूरा एरिया इसको हम कंसीडर कर रहे हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर ये डिवीजन हमने बनाया था, राइट। ये सपोज थोड़ा टेढ़ा बनेगा डिजाइन, सॉरी उसके लिए। ये है हमारा मेन, जिसका है HSR1, ये एरिया। इसके अंदर हमने एक बनाया पैराग्राफ। ठीक है, अब क्या करा, पैराग्राफ के बाद फिर हमने एक डिवीजन बना दिया, एक बॉक्स है इसके अंदर, राइट। और इसका नाम रखा टेस्ट, क्लास नेम है। और इसके बाद एक और पैराग्राफ हमने बनाया था इसके नीचे, राइट। ये पी टैग था और ये भी पी टैग था। अब हम चूज करने क्या गए हैं, कहानी समझिए। हमने बोला कि आप जाओ HSR1 के बाद जस्ट बाद जितने पी हैं। तो अब एक बात बताओ, HSR1 में आप गए, यहाँ इंटर किए, इसमें बोल रहा है इसके जस्ट बाद पी, कहाँ यहाँ पे मिला, यहाँ पे आया ढूंढा पी है, तो बोला नहीं मेरे पास टेस्ट नाम का क्लास नेम के साथ एक डिवीजन है। फिर नेक्स्ट के पास गए, पूछा भाई तेरे पास पी है, ये इसने बोला हाँ मेरे पास पी है। तो आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, राइट। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, और ये दोनों पे सारा CSS अप्लाई कर दिया। अगर यही चीज आप ये करे होते HSR1 और इसके बाद पी किए होते, तो ये कहानी कैसे घूमता जो बताता हूँ। ये आपका पहले नॉक करता इसको, ठीक है, पूछता भाई तेरे पास पी है, बोलता हाँ, इसको मार्क कर लेता। फिर अब इसके पास आता, ठीक है, नेक्स्ट टर्म में इसको बोलता भाई तेरे पास क्या है, तो ये बोलेगा मेरे पास तो टेस्ट नाम का क्लास नेम है, बट मेरे अंदर एक पी है, राइट। तो फिर बोलते अच्छा पी है तेरे पास, इसको भी सेलेक्ट कर लो। फिर आप ये बोलता मेरा डेप्थ खत्म हो गया, अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब इसके डेप्थ में आते, इससे पूछते भाई पी है, ये बोलता हाँ पी है, आप इसको सेलेक्ट कर लेते। तो आप इस मैनर में तीनों का तीनों आपका सेलेक्ट हो जाता, राइट। और ये तीनों पे आपका CSS अप्लाई हो जाएगा। तो ये है कहानी, इस तरीके से आपका CSS वर्क करता है। क्लियर है, समझ में आया पेरेंट वाला चीज कैसे काम करता है, सॉरी चाइल्ड वाला चीज। तो ये इसका चाइल्ड माना गया। तो अगर मैं इसको चाइल्ड और लाइक रिलेशन में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो ये जो पार्ट है बॉडी, बॉडी हो गया एक तरीके से ग्रैंडफादर, सबका बाप, एक तरीके से समझ लो, ठीक है, बापूजी टाइप। जैसे राष्ट्रपिता है ना हमारे महात्मा गांधी, वैसे ही हो गया ग्रैंडफादर सबका, यूनिवर्सल। फिर नेक्स्ट है ये जो है HSR1 का बाप कौन बचा, ये बॉडी सिर्फ, राइट। इसके अंदर तीन बेटे हैं, पहला पैराग्राफ, दूसरा टेस्ट, और तीसरा पैराग्राफ। अब ये दोनों पैराग्राफ जो है, जिसकी शादी नहीं हुई, इसके कोई आगे नहीं है, फ्यूचर अभी में नहीं बना है इसका। इसके अंदर लाइक टेस्ट था, इसके अंदर पैराग्राफ था, मतलब इसका भी शादी हो चुका और इसका भी एक चिल्ड्रन है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। और आप सेलेक्ट क्या करने गए थे, आप बोले थे कि HSR1 में जितने भी चिल्ड्रन है उसके चिल्ड्रन में से पी को सेलेक्ट करके लेके आओ, राइट। आपने यही दिया था ना टास्क कि HSR1 का जितना भी चिल्ड्रन है उसमें जो जो पी है उसको उठा के लाओ। तो HSR के चिल्ड्रन कितने थे, 3, पहला पी, दूसरा था टेस्ट नाम का क्लास नेम, तीसरा पी। अब इसका दोनों बच्चा को चूज करोगे तो कौन कौन सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट होगा और ये सेलेक्ट होगा। तो इस वे में आपका काम करेगा कौन, चाइल्ड सेलेक्टर। अगर इसी चीज को मॉडिफाई कर दूं और मैं ये कर दूं HSR1 के बाद यहां पे अप्लाई कर दूं कि ये क्लास नेम जाएगा टेस्ट, ठीक है, और यहां पे एक और एरो लगा दूं कि HSR के बाद आप ढूंढना टेस्ट, टेस्ट के बाद पी, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला सेलेक्ट चेंज होगा CSS, बाकी दो बच जाएगा। देखो अब इसमें भी एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है वो देखो, ट्रिकी अपन बनाते हैं इसको। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है डिवीजन क्लास, इस टेस्ट के अंदर पैराग्राफ आया, अब इसके अंदर भी एक और डिवीजन बना देते हैं, इसका भी एक और बच्चा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका सपोज आपने क्लास नेम रखा टेस्ट टेक्स्ट करके, ठीक है, इसका डिवीजन, और इसके अंदर आपने पैराग्राफ बनाया, ठीक है। पैराग्राफ में लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। चलो अब कहानी यह है कि टेस्ट के अंदर भी दो पैराग्राफ हैं, एक है जो डायरेक्टली है, दूसरा क्या है, एक के अंदर है। देखो ये जो दिस इज ए पैराग्राफ है, ये अब एक ही रेड हो रहा, क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर के चिल्ड्रन को तो कंसीडर नहीं करा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या,
चाइल्ड सेलेक्टर। और डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या होता है कि जैसे ही डिसेंडेंट सेलेक्टर हम अप्लाई करेंगे वो सब पे एप्लीकेबल हो जाता है। डिसेंडेंट सेलेक्टर कैसे काम करता, अगर यही चीज को हम डिसेंडेंट सेलेक्टर में कन्वर्ट कर देते, चलो लाइक डिसेंडेंट सेलेक्टर वाला टेक्स्ट यूज कर लेते, तो ये नेक्स्ट कमेंट डाल दे रहा हूं। चलो इसके बाद अगर मैं यूज करता इस तरीके से कि HSR1 में जाओ और उसके जितने भी पैराग्राफ हैं उसको कर दो कलर ग्रीन। ठीक है, अब क्या होगा, पहले तो ये ओवरराइट करेगा क्योंकि ये सबसे नीचे है, ठीक है ना। अब देखो सबका सब ग्रीन रहेगा इसके छोड़ करके, क्योंकि इसको स्पेशली मैंने स्टाइल करा था। और अगर ग्रीन पे यही आप इंपॉर्टेंट टैग लगा दोगे ना, ये सबको पकड़ के ग्रीन कर देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टैग हमने लगा दिया। अब देखो ये सारा का सारा सेलेक्टर पे अपना राज चलाएगा, हर एक ग्रीन हो गया। क्यों, क्योंकि HSR के अंदर ही तो सब है, राइट। तो इस तरीके से आपका सारा सेलेक्टर्स वर्क करता है, समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट लास्ट है हमारा, वो है आपका बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड में तो कलर आपको करके दिखा दिया, बैकग्राउंड कलर जो आपने देखा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको भी अभी फिलहाल झोली में डालते हैं, ठीक है, और अपना बैकग्राउंड वाले पार्ट पे आते हैं। तो बॉडी में ही बैकग्राउंड लगाएंगे। तो बैकग्राउंड में जैसे लाइक सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको एक एक करके मैं दिखाते जाता हूं, ठीक है। चलिए, तो पहले तो अपने बैकग्राउंड कलर अपन सेट करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए क्या यूज होता है, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कलर प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, तो आपको जस्ट मैं इनलाइन वाले CSS से काम चला दूं या फिर चल बनाते हैं डिवीजन। एक डिवीजन बनाए और इसका क्लास नेम जो है वो समथिंग रखते हैं बैक, ठीक है। और यहां पे एक पैराग्राफ रखते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। और जितने भी CSS अभी तक अप्लाई करा ना वो सबको झोली में डाल दो, सो दैट कि लाइक काम ना करे। तो हमने क्या करना है कि सबको लाइक इंपोर्ट वाला जो स्टेटमेंट था ना, इसी को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, तो वो यूज में नहीं आएगा। चलो, अब कहानी है कि येलो कलर का बैकग्राउंड था, इसको हटाते हैं, ठीक है, और सेव करते थे। वाइट कलर है बैकग्राउंड में पीछे, ठीक है। अब हमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने एक छोटे से सिलेक्शन के बेसिस पे। तो हमारा जो क्लास नेम है वो क्या है, बैक है, तो हमने क्लास सेलेक्टर यूज करा। अब इसमें मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड और इसके साथ कलर बोल करके एक प्रॉपर्टी आता है। इसमें आप जो भी कलर डालोगे वो आपका बन जाएगा बैकग्राउंड कलर। जैसे यहाँ पे येलो डाला मैंने, अब देखो जैसे रिफ्रेश करूंगा मैं, ये येलो कलर में आ जाएगा इसका बैकग्राउंड। किसका बैकग्राउंड, तो सिर्फ और सिर्फ उस डिवीजन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करोगे। अगर आपको उसी के जगह पे बैकग्राउंड इमेज यूज करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, सपोज आप एक बैक में ही एक बैकग्राउंड इमेज यूज करना चाहते हो, उसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखना है आपको। तो उसके लिए पहले तो हमें एक इमेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो सपोज मैं एक पहले डाउनलोड करता हूँ वॉलपेपर या फिर बैकग्राउंड कलर, ये अच्छा लग रहा है, राइट। इसको थोड़ा डाउनलोड करते हैं और इसी को यूज करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने फोल्डर में ही इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसका नेम रख लेते हैं BG, ठीक है। तो BG.webp फाइल है जिसको हमें रेंडर कराने हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूज करना, तो क्या होगा, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होता है URL, ठीक है। URL में आप पास करते हो जहां पे वो लोकेशन था, हमारा फाइल इसी फाइल के अंदर है, तो WEBP हमने डाल दिया। तो इस तरीके से आप जो पास करोगे जो इमेज, वो बैकग्राउंड में आपका आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखो अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो थोड़ा सा ही आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से थोड़ा सा बैकग्राउंड में आया है, ठीक है ना। तो आप जिस भी इमेज का डालोगे वो आ जाएगा। अगर इंटरनेट से आप इमेज यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली, सपोज ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है इसका मैं इमेज एड्रेस सिर्फ कॉपी किया, आप इस URL में पास कर दो, ठीक है। ये सेव करा, अब रिफ्रेश करेंगे तो वो बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा, देखो हो गया चेंज। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज अपने डिवीजन में इंपोर्ट कर सकते हो।
अब बात है कि इसको और एडजस्ट करना अच्छे से। तो आप जो देखते हो ना, जैसे ही पेज लोड करते हो हीरो इमेज बड़ा सा लोड होता है, ठीक है, तो वो इसी तरीके से बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करके डाला हुआ होता है। उसके ऊपर से आप टेक्स्ट देखते हो, बटन देखते हो, तो वो सब कुछ आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड इमेज के बाद आप इसका हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसका हाइट मैंने सेट करा 20 VH, मतलब 20 वर्टिकल हाइट, हमें इसका हाइट दो, ठीक है। देन रिफ्रेश। Sunil, please stop spamming. You are like continuously clicking on the reaction. So stop that. ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर आप नोटिस करो तो ये इमेज रिपीट हो रहा है। जैसे ही आपका इस जगह पे इमेज खत्म हुआ, ये नेक्स्ट वाला फिर से स्टार्टिंग से रिपीट हो गया, राइट। तो ये बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी है जो आपको बताया था उस वक्त। तो इसी में आप अगर चाहते हो कि वो रिपीट ना हो, तो आपको यूज करना होगा बैकग्राउंड रिपीट करके है। अगर आप कर दोगे नो रिपीट, तो ये सेव रिपीट वाला जो सेक्शन है नहीं होगा। क्या होगा, इतना ही तक में रुक जाएगा आपका। देखो इतना ही तक में रुक गया। और अगर आप इसको रिपीट, बाय डिफॉल्ट ये रिपीट पे सेट होता है, तो ये अगर नहीं आप पास करते हो तो ये रिपीट में रहेगा। देखो क्या हुआ, यहां पे इंड हुआ और ये रिपीट हो गया फिर से। तो ये है आपका बैकग्राउंड रिपीट वाला प्रॉपर्टी। तो 6 प्रॉपर्टी टोटल थे। एक था बैकग्राउंड जो आपको लाइक इनिशियल में दिखाया, दूसरा बैकग्राउंड कलर वो देख लिया हमने, बैकग्राउंड रिपीट वो हमने देख लिया। अब है कहानी बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो अब उसको सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन जो है और अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट में हमने कर दिया स्क्रॉल। स्क्रॉल पे क्या होगा ना कि आप इसके ऊपर से स्क्रॉल कर सकते हो, लाइक आप इसके ऊपर से पास कर जाओगे। तो बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा इफेक्ट इस तरीके का। मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अबाउट एचएसआर पेज पे हमारा जाओगे ना, तो आपको एक पैरामीटर यहाँ पे देखो, स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ तो पीछे का इमेज आपको दिख रहा है, वो स्टैटिक है, राइट। एग्जैक्ट वहीं पे पड़ा हुआ, इसके ऊपर से टेक्स्ट स्क्रॉल कर गया, राइट। वो इमेज वहीं के वहीं है, अगर आप सही से विजुअलाइज कर पाओगे तो इस तरीके का चीजें आपका बैकग्राउंड अटैचमेंट से सेट होता है, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर आपने स्क्रॉल डाल दिया तो वो स्क्रॉलेबल बन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड रिपीट देख लिया, बैकग्राउंड अटैचमेंट देख लिया। अब हो गया बैकग्राउंड पोजीशन। तो पोजीशन में क्या होगा, ये आप सेट कर सकते हो लाइक कि एब्सोल्यूट या फिर रिवर्ट लेयर इनिशियल, कहीं भी आप ये सारे वैल्यू सेट कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड पोजीशन हमने सेट करा राइट, तो ये राइट साइड पे ओरिएंटेड होगा। तो ये थे आपके पूरे के पूरे कहानी बैकग्राउंड पे। देखो राइट पे करा क्या हो गया, आपका इमेज राइट से स्टार्ट हुआ, राइट से जैसे एंड हुआ यहाँ पे हो गया। मैं रिपीट वाला सेक्शन जो है नो रिपीट करता हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। बैकग्राउंड रिपीट, इसको कर दे रहा हूँ नो रिपीट। अब देखोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो राइट साइड से स्टार्ट हुआ, ना कि लेफ्ट साइड से। देखो लेफ्ट साइड ब्लैंक रह गया, राइट साइड से। अगर आप चाहते हो कि पूरा लेयर फिल आउट हो जाए, समझ रहे हो, पूरा फिल आउट हो जाए सर, तो कैसे करेंगे, तो आपको उसी चीज के क्या करना होगा, विड्थ सेट करना होगा 100%। अब क्या होगा, आपका इमेज स्ट्रेच हो जाएगा। अगर 100% विड्थ का नहीं है तो खींच जाएगा इमेज, सिर्फ विड्थ में से पकड़ के खींचेगा, हाइट आपका वही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज अप्लाई करने में आपका इमेज जो है वो कहानी लाइक आपको पहले तो ये हटाना पड़ेगा, हाइट विड्थ 100% ये हो गया, ठीक है। ये सही से काम नहीं कर रहा, 100 VW कर दो। अगर आप देखोगे तो पूरा 100% आपका इमेज यूज हुआ है, और ये राइट साइड से यूज होकर के स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब चाहता हूं मैं कि ये पूरा का पूरा फिल आउट हो जाए, तो बैकग्राउंड साइज करके एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड साइज पे हम जाएंगे और इसको कर देंगे कवर। तो कवर में क्या होगा, ये पीछे से पूरा जितना एरिया है ना वो कवर अप कर लेगा। देखो पूरा कवर कर लिया। तो आप इस तरीके से फुल विड्थ में कर सकते हो सेट। जैसे आप बहुत सारी जगह पे देखते हो कोई हीरो इमेज, तो वो आपको मैं डिजाइन करके दिखाता हूँ कि कैसे आप हीरो इमेज सेट कर सकते हो। अगर मुझे वो सेट करना है, या मैं जैसे ही पेज लोड हो तो 100% विड्थ पे, लाइक ये अगर बैक वाला सेक्शन है वो हीरो इमेज है, इसके ऊपर सारा आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो, तो पहला चीज क्या करना होगा, बॉडी में पहले चीज तो आपको मार्जिन सेट करना होगा 0, ठीक है। मार्जिन के बाद आपका आता है पैडिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन सेट होता है, तो ये हमने सेट कर दिया 0। अब है कहानी कि मुझे फुल विड्थ स्क्रीन पे, लाइक जैसे ये विंडो लोड हो, मेरा प्लान ये है कि जैसे ये पूरा विंडो लोड हो ना, ये पूरा विंडो इमेज से भरा हुआ हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे साइट पे आप देखते हो फुल विड्थ इमेज लोड होता है, ठीक है ना। तो वो कैसे लोड होगा,
वो चीज़ हम अभी देखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये लास्ट सेक्शन है हमारा। तो पहले तो चीज़ है बैकग्राउंड इमेज हमें इंपोर्ट करना होगा। तो हमने ऑलरेडी एक इमेज ले करके ला करके रखा अपने पास डाउनलोड में। तो हम यूज कर लेंगे URL और bg.webp। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं ये इमेज आया या नहीं आया, देन हम आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ पे तो दिखेगा नहीं क्योंकि कुछ भी अंदर था नहीं, तो हम अपन सेट करते हैं हाइट, और हाइट जो है 100 VH रखते हैं, मतलब जितना वर्टिकल हाइट है पूरा स्क्रीन का उतना लेकर के आ जाओ। देखो आ गया इमेज। बट अगर आपको दिखाऊं तो ये इमेज जो हमारा है वो पिंकिश, ये जो कलर है पिंक बोलो या तो फिर बैगनी कलर जो भी बोलते हैं, वो आपको क्लियरली दिख रहा है क्या, नहीं ना, छिपा हुआ है, राइट। तो अगर वो हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें सेट करना होगा विड्थ, और विड्थ जो है हमें रखना होगा हमेशा 100%। ठीक है, 100% रखने के बाद आपको देखो ये विड्थ आ जाएंगे। अब कहानी ये है कि ये पूरा दिखा क्यों नहीं, तो देखो ये रिपीट हो रहा है, जैसे ही देखोगे जैसे ही छोटा करते जाओगे ना जड़, तो ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट वाला पार्ट हमें बंद करना पहले तो उसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, और इसको कर देंगे नो रिपीट। ठीक है, और बैकग्राउंड साइज करके जो प्रॉपर्टी था इसको आप सेट कर लेना। अगर आपका इमेज छोटा है, जो साइज पे आप फिट करना चाहते हो उससे छोटा है, तो आप यूज करना कंटेन। अदरवाइज आपका सॉरी, बड़ा है तो कंटेन, आपका इमेज बड़ा है एरिया छोटा है तो कंटेन। अगर आपका इमेज लाइक देखो इमेज हमारा छोटा है, राइट, अगर मैं इसको 100% पे रख रहा हूं तो इमेज पूरा में फिल्ड आउट नहीं हो रहा, विड्थ जो है कम पड़ जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे कवर। और अगर हमारा इमेज बहुत बड़ा है और एरिया छोटा है तो हम यूज करेंगे कंटेन। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा कहानी। ये देखो फुल विड्थ इमेज आपका बन करके रेडी हो गया। अगर आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हो सेंटर में एकदम वेलकम टू आवर वेबसाइट करके, ठीक है, हमें टेक्स्ट लिखना है तो क्या करेंगे, जस्ट आप जाओगे यहाँ पे H1 टैग क्रिएट करोगे और यहाँ पे लिखोगे वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट लिखा। अब चाहते कि ये सेंटर में रहे तो उसके लिए क्या करना होगा, जो देखिए देखो टेक्स्ट तो आ गया इस पे वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, अब है कहानी कि ठीक है टेक्स्ट आ गया, इसको मुझे चाहिए था बड़ा सा साइज और सेंटर में आ जाए, तो आपको स्टाइलिंग करना होगा। स्टाइलिंग कैसे करोगे, तो आप लिखोगे H1 टैग, और H1 टैग पे क्या लिखोगे, पहले तो फॉन्ट साइज कर दिया 5 EM। ठीक है, EM वाला चीज तो 5 गुना बड़ा हो जाएगा, जो नॉर्मल फॉन्ट साइज है उससे 5 गुना बड़ा। फिर है कि इसका जो मार्जिन लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑटो, और मार्जिन राइट ऑटो। इससे क्या हो जाएगा कि दोनों साइड से इसको मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा। या तो आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उससे भी ये सेंटर में आ जाएगा। देखो सॉरी मार्जिन लेफ्ट राइट इस पर नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं, तो आप इसका में सिंपल सा प्रॉपर्टी जो है वो यूज कर लो टेक्स्ट अलाइन, और इससे भी आपका सेंटर में आ जाएगा। तो हमें टेक्स्ट चाहिए था सेंटर में, तो देखो टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। अब चाहते कि ये थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन रहे और बीच में आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मार्जिन टॉप सेट करना होगा। तो आप इसको परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो मेजरमेंट जो आपको बताया था ना, वो मेजरमेंट आपका मार्जिन में, पैडिंग में, फॉन्ट साइज में, इसी सब में आप यूज करते हो। तो जैसे हमने करा कि 25% ऊपर से मार्जिन लेकर के आप आ जाओ, तो 25% में क्या होगा, जो विड्थ है ना पूरा स्क्रीन का हाइट, उससे 25% ये ले लेगा। देखो मार्जिन लेने पे क्या हुआ कहानी, कि ये ऊपर से स्पेस ले लिया, आपका इमेज भी नीचे खिसक गया, राइट। तो हमें मार्जिन नहीं चाहिए, पैडिंग चाहिए होगा, तो हम इस मार्जिन को सिर्फ रिप्लेस कर देंगे पैडिंग से। अब आपकी कहानी जो आप बनाना चाह रहे थे डिजायर्ड, वो आपका आउटकम रेडी है। ठीक है, तो आज की कहानी इतना ही तक। आज हमने क्या क्या सीखा, अच्छा 25% में कुछ ज़्यादा नीचे हो जा रहा, तो हम इसको 15% पे लाइक 20% पे पहले चेक कर लेते हैं, अगर सही आ जाता तो वहाँ पे रख लेंगे, अदरवाइज 15% पे इसको फिक्स करेंगे। चलो बीच में आ गया एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से रेडी कर सकते हो। सो दिस इज इट। आज हमने बैकग्राउंड ऐड करने तक सीखा। सो किसी को कोई डाउट है? सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कल हम लोग कनेक्ट करते हैं और हम आगे CSS की चीज़ें सीखेंगे। तो आज से हमने स्टार्ट करा है। आज बेसिकली आपको सेलेक्ट करने के लिए दिखाया
कैसे आप टारगेट करते हो एलिमेंट्स को, टैग को, उसके ऊपर CSS अप्लाई करते हो। और कल से हम सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, आज बैकग्राउंड वाला पार्ट हमने सिर्फ कवर करा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मार्जिन, पैडिंग, टेबल का स्टाइलिंग, ये सारी चीज़ें हम आगे के क्लासेस में सीखते जाएंगे। तो आप एक बार क्लास में जो आपको प्लान शेयर किया गया वो आप गो थ्रू कर लो। ठीक है।